Hello student, now we are going to study about development of female gametophyte. Before starting the development of female gametophyte, you must know the term megasporogenesis. What is megasporogenesis? Now megaspore means a female gamete. Megaspore means a female gamete and always gametes are haploid in nature, means it is a single N. Okay, haploids are what? Gametes are haploid in nature. Megaspores are the female gamete. The formation of female gamete is nothing but it is a megasporogenesis. Okay, so how these female gamete or megaspore is formed? Now here already I shown you the structure of female gametophyte. So it is the embryo sac. Okay, this embryo sac is nothing but it is a 8 nucleide 7 cell structure. 8 nucleide 7 cell structure. Now these 8 nucleide 7 cell structure, how it develops? Now it is the nucellus. न्यूसेलस इज टोटली पैरेनकाइमेटस टिश्यू. न्यूसेलस क्या है? ये एक पैरेनकाइमेटस टिश्यूज है. एक पर्टिकुलर पैरेनकाइमेटस टिश्यू से एक सेल आगे आएगा. इट लीड फॉरवर्ड टू फॉर्म दिस एम्ब्रियो सैक. तो ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर. 8 न्यूक्लियाइड जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर एक सिंगल यानी पैरेनकाइमेटस से बनेगा. न्यूसेलस, ये जो पूरा न्यूसेलस का हिस्सा है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा. कैसे बना? ये पैरेनकाइमा से बना है. तो ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो 7 सेल 8 न्यूक्लिया वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये कैसे बनेगा? दैट वी विल सी इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल gametophyte. बट व्हाट इज द फीमेल gametophyte? Female gametophyte means nothing but it is a female gamete. Female gamete here in angiosperm it is called megaspore. So here you have to study the development of megaspore in angiosperm. Now whatever the single cell, जो एक single cell यहाँ पर ये जो पूरा, अभी यहाँ पे embryo sac नहीं है. If suppose we are observing डेवलपिंग ओव्यूल, हमने डेवलपिंग ओव्यूल देखा, तो बेसिकली स्टार्टिंग में खाली क्या रहेगा? न्यूसेलस रहेगा. न्यूसेलस में से एक सेल, ये जो भी सेल है, ये कैसा रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा. ये कौन सा सेल है? पैरेनकाइमा सेल है. पैरेनकाइमा टिश्यू से निकला हुआ सेल है, जो कि न्यूसेलस जिससे बना है. ये एक आगे आएगा और इसके टेट्राइड्स बनेंगे. यानी अगर हम इसको बाहर निकाल के देखेंगे, हाउ इट shows it is a one parenchyma cell which is of the nucellus goes formation of tetrad, goes for the formation of tetrad haploid cells. तो यहाँ से एक रहेगा एक्टिव, बाकी सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो इस तरह से ये जो एक्टिव है, that further leads for the formation of female gametophyte or embryo sac. Okay, तो अब हम आगे पूरा डिटेल में डेवलपमेंट देखेंगे. बट megasporogenesis is nothing but it is the formation of female gametophyte which is haploid in nature from diploid megaspore mother cell. Now who plays the role of this diploid megaspore mother cell? These single parenchymatous tissue which is diploid in nature, it is called megaspore mother cell which is diploid in nature. It further leads to form a haploid female gamete. So in this way, this is the whole process in short called megasporogenesis. Okay, up to this. Now we will see further development of female gametophyte. Here it is, we are going to start development of female gametophyte. Okay.
Now already you have studied the structure of anatropous ovule. Now within that anatropous ovule, if suppose we have taken out nucellus part, ये क्या है, एक nucellus है. Here you can write nucellus. Okay, already the flow chart or diagram is given in your textbook at page number 5. Okay, now from these nucellus, it is a bulk of parenchymatous tissue, a single megaspore mother cell. Here it is a megaspore mother cell. No doubt all are there. बहुत सारा ऐसा bulk of parenchymatous है. वहाँ से खाली एक, अगर हमने जो डेवलप कर रहा है आगे, अगर इसको हमने दूसरे कलर से डिस्टिंग्विश किया, मे बी बाय रेड कलर वी कैन शो, ये है मेगास्पोर मदर सेल. ये जो रेड कलर का है, इट इज अ मेगास्पोर मदर सेल. ओके, अब ये मेगास्पोर मदर सेल का फर्दर डेवलपमेंट होगा. अब सबसे पहले क्या होगा, ये मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस डिवीजन होगा. You know meiosis division is nothing but it is a reduction division. So this megaspore mother cell further leads to form 4n. It is a 2n structure, 1 plus 2 plus 3 and plus this one, the fourth one. So how these are arranged? Now if we will see that if this is a nucellus, now we will take out this one single. हम इस सिंगल को इधर बाहर लाएंगे. ये न्यूसेलस के बाहर आया मेगास्पोर मदर से. इसका डिवीजन होगा 1 2 3 4. देयर इज अ टेट्राड, लीनियर वे में अरेंज है, एक दूसरे के ऊपर. ये हैप्लॉइड tetrad. These are in linear manner. Haploid tetrad, linear megaspore. ठीक है, haploid tetrad, you can say these are the megaspore. Okay. Now होता क्या है, अगर मान लो ये पूरा स्ट्रक्चर काय का है, ओव्यूल का है, तो नीचे माइक्रोपाइल आएगा. ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा, नीचे में माइक्रोपाइल आएगा, ऊपर में क्या रहेगा, चालाजर रहेगा. तो अब यहाँ पे द सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज एक्टिव एंड रेस्ट आर गेट डीजेनरेटेड. यानी आगे क्या होगा, यहाँ से अगर ये माइक्रोपाइल की तरफ है, नीचे की तरफ, इट इज हियर ओनली एंड ऑल दीज 3 गेट डीजेनरेटेड. ये तीनों क्या हो रहे हैं, ऊपर के डीजेनरेटेड हो रहे हैं. ठीक है, अब ये डीजेनरेटेड वैसे रहेंगे एंड ओनली इस तरह से उसका हम डिमार्केशन दिखा सकते हैं. और नीचे में क्या आया, फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर. ओके, अब ये फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर फर्दर लीड्स टू माइटोटिक डिवीजन. ये काय के लिए जाएगा, आगे माइटोटिक डिवीजन के लिए जाएगा. यहाँ तक समझा? ठीक है, अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ से. अब यहाँ पर ये जो भी डिवीजन हो रहा है, ये काय के अंदर हो रहा है, न्यूसेलस के अंदर हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर में ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा. तो अब जैसे जैसे धीरे से इस फंक्शनल मेगास्पोर का साइज बढ़ेगा. पहले 2 न्यूक्लियाई, फर्स्ट डिवीजन. ओके, उसके बाद में सेकेंड डिवीजन, 1 2 3 4. ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड. इसके बाद में थर्ड डिवीजन आएगा,
1 2 3 4 on the chaliza, 1 2 3 4 towards the micropyle. ओके, तो इस तरह से न्यूसेलस से एक सिंगल मेगास्पोर बाहर निकला यानी हमने उसको बाहर निकाल के पढ़ा है, दो इट इज विद इन द न्यूसेलस, ये न्यूसेलस के ही अंदर है, ये ऐसा बाहर नहीं निकला, हमने समझने के लिए इसको बाहर अलग से ड्रॉ किया है। इसके साथ ओविल है, इंटेग्यूमेंट्स है, ऑल द पार्ट्स आर देयर, माइक्रोपाइल इज देयर, चालिजा इज देयर, सारे पार्ट्स वैसे की वैसे ही रहेगी, बट द सिंगल पैरेन्काइमेटस सेल्स कम फॉरवर्ड टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल एंड दिस सिंगल फर्दर लीड्स टू द one by one events for the development of female gametophyte. So one single megaspore mother cell goes for the what? It is the meiosis division. ये जो डिवीजन है ये कौन सा है? मियोसिस है। मियोसिस से 4 टेट्राइड बनेंगे हैप्लॉइड के मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें से ये 3 ऊपर वाले डिजेनरेट हो जाएंगे और जो हैप्लॉइड मेगास्पोर माइक्रोपाइल की तरफ रहेगा वो खाली फंक्शनल रहेगा। तो ये हो गया डिजेनरेटेड का, हमने ऐसे डिमार्केशन दिखाया एंड दिस इज द फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर। ओके, अब इसका क्या होगा? फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा। अब ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, न्यूक्लियर डिवीजन होगा पहले, उसके बाद में धीरे धीरे साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगी। ठीक है, ये पहला डिवीजन हुआ तो एक सिंगल न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस बने, फिर सेकेंड माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 2 के 4 बने और थर्ड से 4 के 8 बने। इस तरह से 8 न्यूक्लियाइड सेल is formed. 8 nucleate cell is formed. Now further, whatever these 8 again get rearranged. This 8 जो न्यूक्लियाइड वाला जो एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या होगा? फिर से अच्छे से रीअरेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8, नो डाउट दिस इज द चालेजा एंड दिस इज द माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एंड है और ये चालेजा एंड है। नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पर gradually it get surrounded by the cytoplasm and there are the antipodals towards the चले जाए। नाउ एक यहाँ से और एक यहाँ से बीच में आ जाएंगे, इट इज द पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद में इधर से ये रहेगा फीमेल गैमेट एंड दिस 2 आर सिनर्जिट्स और ये रहेंगे माइक्रोपाइल की तरफ। दिस टुगेदर इज कॉल्ड एक एपैरेटस, इसको हम क्या बोलेंगे? एक एपैरेटस बोलेंगे। तो इस तरीके से ये एंटीपोडल, ये अब ये पोलर न्यूक्लियाई जैसे ही फर्टिलाइजेशन यानी पोलन ट्यूब की जैसे ही एंट्री होती है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट होने वाला रहता है, दिस पोलर न्यूक्लियाई गेट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या बनेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, दो दिस एग इज हैप्लॉइड इन नेचर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 सेल स्ट्रक्चर बट 8 न्यूक्लियाई इट हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई। सो दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। नाउ यू कैन जस्ट थिंक और दैट कि एक सिंगल ओव्यूल था, सिंगल ओव्यूल में से हमको एक ही एग मिला है, यानी एक मेगास्पोर मदर सेल एक ओव्यूल में से एक न्यूसेलस, दो इट हैविंग द लॉट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, बट वहाँ से एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, मीन्स मोनोटर्म कम्स हियर। यहाँ पे क्या होगा? मोनोटर्म आएगा। तो अब यहाँ पर जो मोनोटर्म आ रहा है यानी यहाँ पे फीमेल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? मोनोस्पोरिक हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पे मोनोस्पोरिक हो रहा है। तो इस तरह से इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म इट इज द मोनोस्पोरिक। अब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इट इज विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड
एंडोस्पर्मिक, इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक. नाउ हियर वॉट एवर द डेवलपमेंट यू हैव स्टडी, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट, इट इज मोनोस्पोरिक, means single egg is developed, it occurs within the ovule, means it is the endospermic development. Monosporic and endosporic development occurs in the angiosperm for the female gametophyte. Okay, so this is all about the development of female gametophyte.